Is it worth it to come in Canada in 2024? On an average जो मेरा monthly expense है वो है because jobs का बहुत issue है. I agree. Hi guys and welcome back to my channel. For those of you who are new to my channel, my name is Shreya Dikshit. I am in Canada as an international student and I keep on sharing a lot of vlogs and a lot of informational videos around in and around as an international student. So this video particularly is going to be about the expenses that you have to bear when you come to Canada in 2024, and trust me, it's not like the last year. It's extremely expensive and you have to do a lot of planning and organizing just to sustain here. So we'll talk about it in detail and I will be sharing my own expenses जो मैं यहाँ पे monthly कर रही हूँ with you in this video. So in the end I will be sharing with you guys one template, one budget sheet that I am following just to keep track of my expenses, and trust me, it is really helpful. It keeps me on the track all the time. Okay, last video one of my subscriber commented, is it worth coming to Canada in 2024? And I wanted to answer this question in a detailed video, and what better video can there be than discussing the entire expenses and getting to know if this Canadian dream that students come for is worth it or not. So we'll answer that question as well in this video, so keep on watching. So अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी and let's start. Okay, so as an international student, the first thing that when you come here, when you land, is a place to stay, right? So rent prices last year जैसे नहीं है, and trust me, last year I came in September 2023, so I started looking for places in July इंडिया से ही, एंड उस टाइम पे भी प्राइजेस बहुत डिफरेंट थे. जब मैं लैंड हुई हूँ उस टाइम पे ही प्राइस एकदम हाइक हो चुके थे. सो देर वॉज अ वेरी बिग डिस्पैरिटी ऑफ प्राइजेस, रेंट प्राइजेस, एंड आई लिव इन नॉर्थ यॉर्क रीजन. सो Ontario or GTA in whole is built up of different cities, and on an average the rent is somewhere down the line on similar range. Obviously downtown Toronto is the extreme of extreme expensive. जब आप प्लेस रेंट कर रहे होते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे आपका रेंट फाइनलाइज होता है. लाइक, आर यू गोइंग टू लिव इन शेयरिंग और आर यू गोइंग टू लिव इन a private room and a private washroom, or just a private room but a shared washroom. Also things like, is the utility included, is is the other things like your Wi-Fi and everything included in that, or else is the place furnished or not. Talking about the price range, so sharing में अगर आप room ले रहे हो तो they can start from 450 and go up to 700, and somewhere down the line 750 also if it is a very big master room. So girls share 750 also. And if you are going to go in a private room, then the rent starts from 700 and go up to as 1000 Canadian dollar per month. Now this all depends. कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि अगर मैं शेयरिंग में भी रह रही हूँ और मुझे मुझे अपने लॉन्ड्री का भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मुझे अपनी यूटिलिटीज़ का भी करना पड़ रहा है, एंड ओवरऑल आपका उतना ही अमाउंट आ रहा है जो आपके प्राइवेट में आपको मिल रहा है विद everything included. So obviously that's a better deal, which in my case happened. So if you guys are interested in watching the basement tour, where I live, what all is included and what all is not, you can check my basement video. It's up on my channel. I would like you guys to, if you're watching and you're from GTA or you're from Canada, just in the comments put your rent and the location that you are in, an average, so that people who have come in this intake or people who are coming in the September intake or May intake get an idea out of the comment section that okay, this is the amount that is going on in this area. Okay, so we are helping the other person as well. Next thing is your phone bill. So I know a lot of people coming here and they all are with this dream कि हम Canada जाएंगे, जाते ही iPhone ले लेंगे,
जाते ही एप्पल भक्त बन जाएंगे और सब कुछ आईफोन हो जाएगा. ट्रस्ट मी, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन. आई वोंट से कि मुझे नहीं लेना था या ऐसा कुछ था. येस, आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग एन आईफोन, बट नॉट एट दिस मोमेंट. अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी अभी के टाइम पे नीड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको उन पे ही वर्क करना चाहिए रेदर देन योर वांट्स. एंड नीड्स के लिए आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जो सही चीज़ में सही कॉल कर ले, कैमरा सही हो उसका, एवरीथिंग. आई अंडरस्टैंड एक अच्छे कैमरे की भी नीड. सो वो सब एक नॉर्मल फ़ोन में होती है. एंड फ़ोन के साथ फ़ोन बिल लोगे तो आपको कब अराउंड कॉस्ट करेगा. आई जस्ट हेल्प डीना वॉट हर आईफोन. तो मैं वहाँ पे गई थी एंड आई वॉन्टेड टू गेट टू नो दैट एक्सपीरियंस कि एक्चुअली में वो कितना हो रहा है. एंड इट केम डाउन टू $100 पर मंथ. सो एंड समवेयर अराउंड अगर आपको बहुत अच्छी डील भी मिल रही है, सो यू गो टू 80-90 और at least you have to pay around $75+ every month for that plan. Whereas if you compare it to my plan, which is just a simple phone bill Fido plan, which I took in India only, and यहाँ पे आके वो active हुआ था, I still till date I pay only 45 Canadian dollars per month, which is also a huge thing. I wish Canada में जियो आ जाए. अम्मानी जी, हम आपका बहुत वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आ जाइए. ये हर इंटरनेशनल स्टूडेंट और हर बंदा यहाँ का कह रहा है. द डाटा इज़ एक्सपेंसिव हियर, एक्सपेंसिव. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ ग्रोसरी. ओके, ग्रोसरी गाइज, ग्रोसरी इज़ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो या आप प्राइवेट रह रहे हो, एंड ये सारे फैक्टर्स की वजह से ग्रोसरी डिफ़र करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अ प्राइवेट बेसमेंट. I cook my own food. I don't take any tiffin and anything, and I'm a vegetarian. So my grocery is like I do it in once in a month, and it goes like I start with 150 first go mein, and then my replenishment keeps on happening, like milk and veggies and everything. But that only happens like once, so once in a month again. So it's like ओवरऑल मेरा $200 कैनेडियन डॉलर जाता है मेरी ग्रोसरी में, बिकॉज आई कुक अ लॉट एंड आई कुक लाइक ऑल माई मील्स ऑन माई ओन. सो दैट इज़ इट. शेयरिंग और प्राइवेट में ये भी होता है कि आप शेयरिंग कर रहे होते तो आपको चीज़ें थोड़ा कॉमन होता है, तो उस चीज़ पे थोड़ा हैसल भी ज़्यादा होता है. बट प्राइवेट में इट्स only on you. So this grocery is grocery. I would like to say it's not eaten out. Eating out का एक अलग section है, ठीक है. ये सिर्फ grocery है. the दूध, दही, सब्जी you are getting for yourself and you're cooking your meal. This is that grocery. So it can range from 200, which is my own. 6 महीने हो चुके हैं मुझे, तो एक्सपीरियंस से मुझे पता लग चुका है कि 200 कैनेडियन डॉलर इज़ समथिंग दैट मंथ में ग्रोसरी के लिए जाता ही जाता है गाइस. उसके बाद आता है बाकी, इट कैन गो अप टू हाई एज 400 ऑल्सो. आई हैव few friends who eat a lot of non-veg and who munch around a lot, so वो चीज़ भी 400 जाती है. and some days like I remember once a month मेरा भी एक बार 250 हो गया था, 250 कैनेडियन डॉलर्स ऑन ग्रोसरी, बिकॉज आई गॉट सिक एंड देन आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ सूप एंड ऑल दैट. सो उस चक्कर में मेरा भी 250 के पास गया था. बट ऑन एन एवरेज मैक्सिमम दैट आई स्पेंड इज 200 कैनेडियन डॉलर्स ऑन ग्रोसरी. ट्रांसपोर्टेशन, सो आप ट्रैवल करोगे प्रेस्टो कार्ड के थ्रू. प्रेस्टो कार्ड अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपके क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेस्टो कार्ड. मैं तो एक खो चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है इसका, ठीक है. तो प्रेस्टो कार्ड में आप रिचार्ज करा सकते हो. प्रेस्टो कार्ड आप जब बनवाने जाओगे शॉपर्स ड्रग मार्ट या एनी ऑफ द स्टेशन दैट यू गो टू, दे विल चार्ज यू $6 फॉर दैट कार्ड एंड देन द फंड दैट विल गो इन टू इट. I think एक साइड का for 2 hours it's 3.5 Canadian dollars that you have to pay, and somewhere around in monthly if I have to say, तो अगर आप जा रहे हो तो आपका $100 to $110 आपका जाता है in Presto card if you are traveling to your college or frequently. That depends totally on आप कहाँ जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो या आपका कॉलेज दूर है. So I would also suggest कि आप अगर जगह ले रहे हो, for example मैंने जो basement rent किया है it is very near to my college, so at least for college I don't have to spend in my transportation. So always keep your
place of stay near to either your work or your college, so that at least you save some amount there. Now work पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेस्टो का एक पास भी आता है, मंथली पास, जिसमें आपको कन्वर्ट कराना होता है अपने प्रेस्टो कार्ड को ही, तो वो $128 का आता है. जब मैं फुल टाइम काम करना मैंने शुरू किया अपनी लोकेशन पे, अपनी लास्ट जॉब पे, जो बाय द वे जा चुकी है, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो. अभी रिसेंटली स्नो स्टॉर्म एंड हाउ आई लॉस्ट माई जॉब, वो भी व्लॉग यहाँ पे है, आप देख लेना. सो उस जॉब के टाइम पे, फुल टाइम के टाइम पे, आई टुक दैट प्रेस्टो का पास विच वॉज $128 एंड इट वॉज रियली गुड, बिकॉज उसके बाद मुझे कहीं पे भी सोचना भी नहीं पड़ रहा था, मैं उतने टैप कर सकती थी. इट वॉज अनलिमिटेड टैप, सो नो 3.5 वाला था. एंड द वेरी बिग सेक्शन हियर इज़ योर मिसलेनियस. नाउ मिसलेनियस फंड्स में भी काफ़ी चीज़ें आती है. नाउ मिसलेनियस में क्या होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स से ये गलती होती है कि वो उस चीज़ को भी स्ट्रक्चराइज नहीं करते हैं कि मुझे ये फ़ंड यहाँ डालना है, यू नो, दिस इज़ माई लिमिट फॉर ईटिंग आउट, दिस इज़ माई लिमिट फॉर द सब कैटेगरीज ऑफ मिसलेनियस. दे जस्ट डोंट मेजर इट एंड एंड ऑफ द मंथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है. सो यू नीड टू कीप अ लिमिट ऑन दैट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, माई लिमिट ऑफ ईटिंग आउट इज़, you know, $100. For coffee I have a different limit. For eating out I have a different limit. For entertainment I have different limit. Entertainment is, you know, any subscriptions if I have. I don't have that subscription because I use Surfshark, not sponsored guys, Surfshark, and I use my Indian subscriptions here only. So मेरा वो कोई एक्सपेंस नहीं है. बट इफ़ यू हैव यहाँ के अमेजॉन प्राइम और एप्पल म्यूज़िक और एनी स्टोरेज दैट यू हैव, उस सब का आपको पे करना पड़ता है. देन आउटडोर्स, नाउ आउटडोर ईटिंग एंड आउटडोर्स इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज आउटडोर्स यू गो फॉर एक्टिविटीज़ लाइक मूवीज़, you go for bowling, you go for any, you know, specific rides or any activity. So all that is a different expense altogether. So considering all that, आपको एक बजट सेट करना पड़ेगा. Now for me this miscellaneous goes up to, you know, $250-300, which includes my eating out, my coffee, and my outdoor activities, and my you know, movies, and everything is within this. Even this also includes, so miscellaneous for me also includes getting gifts from my family back in India. मैं सेल हुई थी तो I bought a lot of stuff for my family already, so that जब भी मैं वापस जाऊँ मैं उनके लिए वो सामान लेके जा सकूँ. So all that also comes in my miscellaneous अमाउंट ओनली. इसका डिसइंटीग्रेशन मैं आपको जो टेम्पलेट दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उसमें आपको दिख जाएगा. दिस शीट हैज़ एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट यू प्लान्ड, व्हाट योर एक्सपेंसेस, एंड यू कैन कैलकुलेट इवन योर सेविंग्स. सो इट्स अ गुड हैबिट दैट at least in the start of the month and the end of the month you fill this up for yourself, so that you also get a clear reality check that okay, I spend this much this month on this and I need to cut it down, because जो हो गया उसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते. and I've learned this very hard way. but आप आगे से और ज़्यादा कॉशियस हो सकते हो उन चीज़ों को लेके, स्पेशली आप बाहर कंट्री में रह रहे हो तो आपके कुछ एम्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं जिनके लिए आप यहाँ पे आए हो, और उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है. तो भी जो ये शीट है, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन गो डाउनलोड एंड यूज़ इट इफ़ यू लाइक, एंड आई एम पुटिंग एन एफर्ट हियर, सो यू नो द ड्रिल. एफर्ट जाता है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दो एंड कॉमेंट कर दो. एंड ऑन एन एवरेज जो मेरा मंथली एक्सपेंस है वो है अराउंड $1,200 to $1,400, डिपेंडिंग अपॉन मैं कोई चीज़ ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ. कई बार मिसलेनियस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और कई बार I end up spending more onto that. So $1,200 to $1,400 is something that I spend monthly. The final question, is it worth it to come in Canada in 2024? Guys, I won't do a very डिप्लोमेटिक आंसर. मैं बहुत क्लियर कट बात करने में बिलीव करती हूँ, एंड दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से ऑल्सो हियर, कि जो कैनेडियन ड्रीम 2 साल पहले की थी उससे अगर आप आओगे तो वो पूरी ड्रीम चेंज हो चुकी है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज US एंड कैनेडा इज़ गोइंग इन रिसेशन एंड द इन्फ्लेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई. थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर दिस, you know, as per the semester that I thought it would be, but it is not, because jobs का बहुत issue है. I agree, but वो issue तभी तक है जब आप effort नहीं डाल रहे हो. अगर आप effort डाल रहे हो तो आपको वो चीज़
मिल जाएगी, बट बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे. पहले लोगों को कंपैरेटिवली इजीली चीज़ें मिलती थी, अब आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा उन चीज़ों को लेने के लिए. दूसरी चीज़ जो इसमें मेजर फैक्टर है वो है कि आपकी GIC जो पहले आप सेव कर रहे थे वो ऑलमोस्ट यूज़ अप होती है आपकी यहाँ पे, टिल द पॉइंट आप और भी ज़्यादा अर्न नहीं करने लग जाते हो. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप ज़्यादा अर्न करोगे इसका मतलब है आप ज़्यादा आर्ट्स पुट इन कर रहे हो, और उन आर्ट्स को पुट इन करने के लिए बच्चे भूल जाते हैं कि उनकी हेल्थ है, उनकी एक लाइफ है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप आए थे. यहाँ पे सिर्फ लेबर वर्क के लिए आप नहीं आए थे. सो वो फैक्टर्स कमिंग ऑन टू May intake or September intake, if you're coming here, if you're planning to come here, keep this in your mind that yes, GIC they have increased. So honestly they have now so the last video that I made SDS का process, उसमें मैंने बताया था GIC 10,000 Canadian dollar and now they have changed it to 20,000 Canadian dollars. So yes, now you will get that GIC, but अगेन वो फंड आप सेव नहीं कर पाओगे, उसको आप यूज़ करोगे काफ़ी हद तक. तो वो चीज़ अपनी दिमाग में रखना जब आप आ रहे हो कि आप किन चीज़ों पे कट डाउन कर सकते हो. ऑब्वियसली अपनी पीस पे, अपनी मेंटल स्पेस पे उन चीज़ों पे मत करना प्लीज़ कट डाउन, बिकॉज उससे आपको स्ट्रेस होगा. आई नो हियर पीपल working 80 hours and I know people here living in like 300 also for the sake of 4 लोग एक हॉल शेयर करके रह लेंगे. बट उससे गाइज आपकी मेंटल स्पेस मतलब आप उससे गाइज आपको इफ़ेक्ट होगा. आपकी प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, एंड यू एंड अप लिविंग अ लाइफ दैट यू नेवर थॉट दैट यू विल लिव व्हेन यू कम हियर. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे एज अ स्टूडेंट निकालना होता है, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड. आई वोंट डिनाई इट, डेली स्ट्रगल होते हैं, एंड आपको बस अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है. एंड उन चीज़ों के लिए, उन स्ट्रगल्स को पार करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ता है. उन चीज़ों के लिए यू नीड दैट स्पेस, यू नीड गुड फूड, you need a good shelter. So that's it. For me, moving to Canada is worth, because the loan that I've taken, I think if I work here, only then I will be able to pay it off and live a better life. So if that's something that helps you making your mind clear, and then obviously you can come here. This video was an attempt to just keep you guys aware of what is happening here, not to demotivate anybody, or not to question anybody's decision. और मैं भी ये videos देखती थी and then I used to think कि भाई खुद तो कनाडा बैठ गई जाके, और अब मुझे ये बोल रही है कि भाई मेरे को नहीं आना चाहिए. मैं किसी को नहीं बोल रही नहीं आना चाहिए, आओ, बट कॉशन के साथ आओ, and think about these decisions, because a lot has changed since the time I've come, and before that also things were very different. So think about and then come, and जो भी होता रहेगा कनाडा में वो आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होगे एंड आप मेरी वीडियोस को देख रहे होगे. So like, share and subscribe. Keep dreaming big. I shall see you in the next video.